Water is one of the important natural resources. On earth, life is not possible without water. Water is a prime natural resource, a basic need, and a precious national asset for all. Hello students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, in today's video we are going to read about water, a precious resource, and we will have these topics: states of water, water cycle, sources of water, groundwater, depletion of water table, distribution and management of water, effect of water scarcity on plants, purification of water, and water pollution. So let's start. We know that water is a prime natural resource for all of us and it is the basic need of every living thing. हर natural living thing जो है, चाहे वो plants हो और दूसरे जो organisms हो, उनके लिए water जो है बहुत necessary है, because it is the base of life. It is the essential thing for existence of life. Okay, and that's why we celebrate 22nd March as World Water Day, and this day makes us understand the importance of conserving water. This day gives us message that scarcity amidst plenty. This means we have lots of water in the form of fresh water on the earth. हमारे पास बहुत सारा वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है, लेकिन ये जो वाटर है हमें अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जैसे कि स्नो है, ग्लेशियर्स है और रेनफॉल है. हमारे पास बहुत सारा वाटर होते हुए भी कई रीजन्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जो बहुत लैक ऑफ वाटर वहाँ पर है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है, लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं है. सो स्कार्सिटी अमिस्ट प्लेंटी, मतलब बहुत सारा पानी होते हुए भी बहुत सारा रीजन जो है अर्थ का वो अभी भी सूखा है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर वाटर. सो दिस इज द 22nd March we celebrate as World Water Day. Water is available in plenty on the earth. Water covers nearly about 71% of the earth's surface. But unfortunately 97.4% of total water is present in oceans and it cannot be utilized because it is salty in nature. तो ocean water जितना भी है हम उसको use नहीं कर सकते because it is salty. The rest 2.6% is found in freshwater resources. अब freshwater resources कौन से होते हैं? जैसे कि lakes है, rivers है, streams है, ponds है और ice caps यानी कि glaciers है. There is scarcity of usable water in large parts of the world. इतना पानी होते हुए भी हमारे पास जो फ्रेश वाटर है उसका थोड़ा शॉर्टेज है. यू कैन सी हियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर. सी ऑल वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इट इज 97% and that is salty water. We cannot utilize it. Then fresh water we have only 3% and that 3% again it is divided into ice caps and glaciers जो कि 79% है. ग्राउंड वाटर जो है वो है 20%. तो इस तरह से जो फ्रेश वाटर है बहुत सारा वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो आइस कैप्स, ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर तो हम यूज़ करते हैं, बट ग्लेशियर्स में जो फ्रेश वाटर है वो हम यूज़ नहीं कर सकते. इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर इन द रिवर्स आफ्टर मेल्टिंग. देन जो 1% सरफेस फ्रेश वाटर है, सरफेस का जो फ्रेश वाटर हम यूज़ करते हैं वो 1% है, जो कि लेक्स में है 52%. देन जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है इट इज़ 38%. देन वाटर वेपर के फॉर्म में जो वाटर है वो 8%, रिवर्स में 8%, और जो हमारी ऑर्गेनिजम्स जो भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके बॉडीज़ के अंदर जो होता है वो है 1% ऑफ दिस वाटर. तो इस तरह से जो थोड़ा सा हमारे पास 1% एसेसिबल वाटर है फ्रेश वाटर, उसको हमें यूज़ करना पड़ता है. द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ पोर्टेबल वाटर इज ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स जो है वो सबसे बड़ा रिजर्वायर है. वाटर ग्लेशियर्स, यू कैन सी ग्लेशियर्स जो है वो बहुत बड़े बड़े आइस के पीसेज होते हैं और जो टूटते हैं ग्लेशियर से दे आर नोन एज आइसबर्ग्स. स्टेट्स ऑफ वाटर. इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म. द वाटर प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म एग्जिस्ट इन 3 states, that is solid, liquid and gases. So we will see one by one. Solid. Water at 0 degree Celsius and below this temperature occur in solid state. 0 degree के नीचे जो है water solid state में मिलता है. In nature water occurs in solid state in glaciers, icebergs and hails. तो ये
सॉलिड स्टेट है वाटर के, यानी कि पानी जो है वो ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स और हेल्स के फॉर्म में जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और ये हमें मिलता है 0 डिग्री के नीचे. हियर यू कैन सी दीज आर द glaciers, this is an iceberg, and these are hailstones. Then liquid water at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius exist in the liquid state. 100 degrees को पार करने के बाद आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस फॉर्म. तो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो वाटर का स्टेट होता है वो लिक्विड होता है. लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, rivers and underground in the form of underground water. Here you can see rivers, oceans, lakes and underground water. Gaseous state. Water at 100 degrees Celsius and above this temperature exists in gaseous form. We call it steam. Earth's atmosphere contains a large amount of water vapor. Earth का जो atmosphere है उसमें बहुत ज़्यादा amount में water vapor फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर. और जब ये चेंज इन स्टेट होता है लिक्विड टू गैस आफ्टर हीटिंग, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो वाटर का चेंज होता है गैस में उसको हम कहते हैं स्टीम. इन द फॉर्म ऑफ स्टीम हम वाटर को देख सकते हैं. ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज इनटू ईच अदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर. द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन. हियर यू कैन सी व्हेन आइस is heated it becomes water, when water is heated it becomes steam, when steam is cooled again it forms water, and when water is cooled it forms ice. तो ये है 3 states of water की interchangeability, मतलब हम इन तीनों states को interchange कर सकते हैं by heating और by cooling. तो clouds and fog और mist जो है these are the gaseous form of water and also the water vapor we can say or steam. So these are the gaseous state of water. Then water cycle. Interconversion of different states of water takes place in cyclic form in nature and this cycle is called water cycle. Water cycle हम already पढ़ चुके हैं पहले. Water cycle can be defined as the continuous circulation of water in nature. Water cycle का मतलब होता है water जो है वो एक continuous cyclic form में nature में कन्वर्ट होता रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. इसी वाटर साइकिल को हम एक साइकिल के फॉर्म में ड्रॉ भी कर सकते हैं. जैसे you can see the picture here. So this is the diagram of water cycle. Water evaporates all the time from the surface of water bodies due to all heat of the sun. सन की जो हीट है उसकी वजह से जितनी भी सरफेस वाटर बॉडीज हैं अर्थ पे उनमें से कंटिन्यूस इवापोरेशन होता रहता है. Plants also releases water vapor during transpiration from the surface of the leaves, and we know that plants also give out water vapor in the process of transpiration. The water vapors rise at a certain heights where they condense to form clouds. When these water vapors rise up in the atmosphere, it condenses to form clouds और इस तरह से clouds बनते हैं. When clouds are saturated with water vapors and become heavy, precipitation occur. जब ये clouds heavy हो जाता है because of water vapors, तो वो as a precipitation और we can say rainfall के form में earth पे वापस आता है. रेन वाटर इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. रेन वाटर जो है वो नेचुरल वाटर का एक प्योरेस्ट फॉर्म, जो कि सबसे प्योर होता है, वो फॉर्म होता है रेन वाटर. हियर यू कैन सी जो सारा वाटर होता है वो वाटर बॉडीज में कलेक्ट होता है रेन वाटर, वहाँ से फिर इवापोरेशन होता रहता है उसका, देन क्लाउड फॉर्मेशंस होते हैं. दिस क्लाउड्स देन fall down in the form of rainfall and this process is known as precipitation. Again this surface water is collected into the water bodies. So एक cycle के form में ये processes होती रहती है nature में, and this is called water cycle. What is the importance of water cycle? Why it is needed? Water cycle helps in regulating the weather on the earth. Water cycle की वजह से पूरे earth पे जो weather है, जो climatic conditions है, वो regulate होते हैं. वाटर साइकिल मेक्स वाटर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द ऑन द अर्थ. वाटर साइकिल की वजह से अर्थ के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग फॉर्म में वाटर अवेलेबल होता है. जैसे अगर आप नॉर्थ या फिर साउथ पोल पे जाओगे तो यू विल फाइंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, है ना, दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. देन इन द फॉर्म ऑफ रेन वी गेट लॉट्स ऑफ वाटर. सो ये जो वाटर है रेन वाटर या फिर
जो फ्रेश वाटर हम कहते हैं। तो ये वाटर साइकिल की वजह से नेचर में कंटिन्यूअस साइक्लिक फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग वेदर एंड फॉर चेंजिंग द सीजन्स। और वाटर जिस फॉर्म में अर्थ पे आता है, जैसे कि रेनफॉल है, देन ड्यू, मिस्ट, फॉग, रेन, हेल, स्नो, ये सारे वाटर के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो हमें अर्थ पे मिलते हैं बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। Sources of water. Water in nature occurs in two forms, that is surface water and underground or groundwater. Surface water is present on the surface of the earth and the sources of surface water are lakes, rivers, streams and ocean. तो ये सारे surface water के sources हैं। Underground और ground water जो है, ground water is simply water lying under the ground. Water जो कि ground के अंदर होता है, where the soil is completely saturated with water. अंडरग्राउंड अगर आप देखोगे अर्थ के अंदर, तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो कम्प्लीटली सैचुरेट हो जाती है वाटर से। दैट मीन्स सॉइल के अंदर के जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं या जो गैप्स होते हैं, वो वाटर से भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं। दिस इज नोन एज सैचुरेशन। इफ़ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी कैन फाइंड मॉइस्ट सॉइल। किसी वाटर बॉडी के आसपास अगर आप होल करते हो तो आपको मॉइस्ट सॉइल मिलेगी अंदर से बिकॉज ऑफ सैचुरेशन। मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर और प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अगर आपको उस होल में मॉइस्चर मिलता है सॉइल के अंदर, दैट मीन्स वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है। द मोर वी डिग डीपर एंड डीपर a layer is found where the space between the particles of soil and gaps between rocks are filled with water, and the upper level of this groundwater is known as water table. The water table varies from place to place. अब अगर हम बहुत डीप अंदर अर्थ के अंदर या सॉइल के अंदर हम डिगिंग करते हैं, खोदते हैं ज़मीन को, तो हमें एक वाटर का लेयर मिलता है। वी गेट वाटर अबव द रॉक्स, और ये जो वाटर होता है उसको हम कहते हैं वाटर टेबल, है ना। तो अपर लेवल जो भी होती है इस ग्राउंड वाटर की उसको हम कहते हैं वाटर टेबल। और ये वाटर टेबल हर जगह एक जैसी नहीं होती है। जहाँ पर रेनफॉल कम होता है तो वाटर टेबल के लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ता है, लेकिन जहाँ रेनफॉल अच्छा होता है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है मिट्टी के अंदर पानी का, वहाँ पर वाटर टेबल जो है वो जल्दी हमें मिल जाती है। These are the natural resources of water: oceans, rivers, ponds, lakes and streams. These are the sources of underground water: springs, यानी कि झरने जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अर्थ के अंदर से यानी कि सॉइल के अंदर से पानी ऊपर आता है। Then wells, hand pumps, tube wells, these are the sources of underground water. Here you can see. अब ये जो वाटर बॉडी है इसके पास अगर हम ये हैंड पम्प लगाते हैं यहाँ पर, या फिर कोई ट्यूबवेल लगाते हैं, तो यहाँ की जो सॉइल है इट इज सैचुरेटेड सॉइल, मतलब यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज है। यू विल फाइंड हियर वाटर एंड दिस वाटर कैन बी टेकन आउट बाय द ट्यूबवेल्स। Sometimes the groundwater can store between the layers of hard rock below the water table. This is called aquifer. Water in aquifers can usually pumped out by using tube wells and hand pumps. तो जो भी वाटर हम ट्यूब वेल्स या फिर हैंड पम्प से निकालते हैं अर्थ के अंदर से, तो वो वाटर होता है हार्ड रॉक्स के ऊपर जो कलेक्ट हो जाता है ना। लेयर ऑफ हार्ड रॉक होता है, हमने सॉइल चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो हार्ड रॉक का लेयर होता है जिसको हम बेड रॉक कहते हैं, तो इसके ऊपर पानी कलेक्ट हो जाता है और इसको हम कहते हैं एक्विफर। Groundwater is replenished by the rainwater and other sources such as rivers and ponds. The water from these sources seep into the soil and fill the empty spaces and cracks deep below the ground. अब जो भी वाटर रेन वाटर अर्थ पे आता है और जो भी कलेक्ट होता है रिवर्स और पॉन्ड्स में, ये वाटर कंटिन्यूसली सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है। इट सिप्स थ्रू द सॉइल, और सॉइल के अंदर जितने भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं बिलो द सॉइल, उनको वो फील कर देते हैं विथ वाटर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड। द ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। इनफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, मतलब जो वाटर टेबल होता है वो ऊपर आ जाता है। हियर यू कैन सी दिस इज द वाटर टेबल। ये है वाटर टेबल, यहाँ से ग्राउंड वाटर मिलना हमें शुरू हो जाता है। ये सैचुरेटेड जोन है, मतलब यहाँ पर जो स्पेसेस है सॉइल के अंदर, यहाँ पर वो कम्प्लीटली फिल्ड है, सैचुरेटेड है वाटर से, और इसके नीचे जो बेड रॉक है इनके गैप्स में जो है वाटर कलेक्ट हो जाता है। सो इट इज नोन एज बेड रॉक एक्विफर। हियर यू कैन सी दिस इज द केव अंडर द ग्राउंड। अंडरग्राउंड जो केव्स होती हैं जहाँ पर रॉक्स होते हैं
वहाँ पर वाटर कलेक्ट हो जाता है. So this is infiltration. It is defined as the downward movement of water from soil surface into the soil mass through the pores of soil. तो infiltration मतलब downward movement of water in the soil. So here you can see ये water table है और इस तरह से ये precipitation मतलब जो rainfall का water होता है वो soil के अंदर seep होता है. Then depletion ऑफ वाटर टेबल. वाटर टेबल का जो डिप्लीशन है मतलब वाटर टेबल क्यों रिड्यूस हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. वी विल सी वन बाय वन. यू मे ऑब्जर्व दैट एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल. कैन यू से व्हाई? अब हम देखते हैं कि हर तरफ जो है एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, रोड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल का पार्ट होता है यानी कि जो ओपन सॉइल होती है वो कवर हो जाती है या तो रोड से या फिर बिल्डिंग से. और इस तरह से जो एब्सॉर्प्शन एरिया होता है वाटर का, जब रेनफॉल होता है तो वाटर जितना सॉइल के अंदर जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है क्योंकि एब्सॉर्प्शन एरिया जो है वो कम हो जाता है. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, जो भी हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं उसकी वजह से. वाटर ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड गेट्स रिप्लेनिश्ड बाय द सीपेज ऑफ रेन वाटर. द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ is replaced by natural processes. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. अब हम ग्राउंड वाटर तो यूज़ करते ही रहते हैं बट जितना यूज़ हम करते हैं उतना जो वाटर है वो सिप नहीं हो पाता है सॉइल के अंदर और इसीलिए जो वाटर टेबल है, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है. और इसके कुछ रीजंस हैं जैसे कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड डिफॉरेस्टेशन. अब ये चारों जो रीजंस यहाँ पर दिए हुए हैं वो कैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल के लिए वो हम देखते हैं. हियर यू कैन सी इन द मंथ ऑफ जनवरी इट इज़ अप, इन द मंथ ऑफ जून इट इज़ गोइंग डाउन, देन इन द मंथ ऑफ जनवरी इट इज़ गोइंग अप, इन द मंथ ऑफ जून इट इज़ गोइंग डाउन. तो जब समर सीजन आता है तो वाटर का जो सीपेज होता है वो नहीं हो पाता है सॉइल के अंदर, इसलिए वाटर टेबल नीचे चला जाता है. लेकिन जब बारिश का सीजन होता है ना, मानसून जब आता है तो उस टाइम वाटर टेबल जो है वो ऊपर आ जाता है बिकॉज ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इनसाइड द सॉइल. तो फर्स्ट जो रीज़न है वाटर टेबल डिप्लीशन का वो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. It creates demand for construction of houses, commercial buildings, mall, offices and other infrastructures. As a result, it decreases the open areas like parks, playgrounds for the seepage of rainwater into the ground. जैसे हमने पहले बात की कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, डिमांड जो होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस है, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स होती हैं, मॉल्स, ऑफिसेस और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जैसे कि हॉस्पिटल्स है या फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब की डिमांड्स बढ़ जाती हैं. और इसकी वजह से जो ओपन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लैंड ओपन होती है जैसे कि पार्क्स है, प्लेग्राउंड्स है, ये कम होने लगे हैं. और यही रीज़न है कि सीपेज ऑफ रेन वाटर जो है ग्राउंड के अंदर वो कम होता है क्योंकि ओपन एरिया ही नहीं है हमारे पास सॉइल का. सो यू सी दैट ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन वी कंज्यूम मोर ग्राउंड वाटर एंड अलाउ लेसर वाटर टू सीप इन टू द ग्राउंड. अब वाटर तो बहुत कम सीप होता है ग्राउंड के अंदर क्योंकि हमने लैंड का ओपन एरिया नहीं छोड़ा है. लेकिन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से जो डिमांड्स बढ़ी है उसमें जो है ज़्यादा ग्राउंड वाटर हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसकी भरपाई हम नहीं कर रहे हैं, उतना वाटर ग्राउंड के अंदर यानी सॉइल के अंदर नहीं जा रहा है एंड दिस कॉजेज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. हियर यू कैन सी शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जिसकी वजह से ड्रॉट्स भी आते हैं. Second is increasing industries. Besides rapid increase in population, the increasing industries are also responsible for depletion of water table because industries draw maximum water from the ground. अब जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये काम करती हैं दिन रात, वहाँ पर प्रोडक्शन चलता रहता है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बढ़ता है. और इसके लिए जो पानी की ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग प्रोसेसिंग के लिए, वो सारा वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है, मोस्टली ग्राउंड वाटर ही यूज़ किया जाता है और इसीलिए वाटर टेबल जो है वो डिप्लीशन उसका हो रहा है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर देयर कल्टिवेशन. व्हाई? बिकॉज रेन वाटर इज़ नॉट सफिशियंट टू इरीगेट देयर क्रॉप्स. फार्मर्स जो है सिर्फ रेन वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं क्रॉप्स के कल्टिवेशन के लिए क्योंकि रेन वाटर सफिशियंट नहीं होता है, इसलिए वो ग्राउंड वाटर भी यूज़ करते हैं एंड एज ए रिजल्ट डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल टेक्स प्लेस और इससे भी वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाता है, उसमें डिप्लेशन होता है. देन लास्ट इज डिफॉरेस्टेशन. द कंप्लीट और पार्शियल रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन
फ्रॉम एन एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर लैंड से पूरी तरह से या फिर पार्शियली ट्रीज को रिमूव कर देना या फिर उस वहाँ का वेजिटेशन जो है उसको खत्म कर देना, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। एंड इट डिक्रीजेज सीपेज एरिया ऑफ वाटर, और इससे क्या होता है कि जो सीपेज एरिया है वाटर का वो कम होता है। एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनके रूट्स जो है बहुत सारा रेन वाटर जो है उनकी वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, है ना, दे होल्ड द सॉइल। और अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काटते हैं, वेजिटेशन अगर रिमूव कर देते हैं किसी लैंड से, तो वहाँ पर सीपेज एरिया जो है वो कम हो जाता है और डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हम वहाँ देखते हैं। एक और है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इंडिया में हम देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में रेनफॉल जो है उसका अमाउंट अलग अलग होता है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होता है, हेवी रेनफॉल होता है, और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं होता। तो आप ये मैप देख सकते हो, यहाँ पर जो बिल्कुल डार्क कलर है ब्लू, वो बहुत हेवी रेनफॉल के रीजन्स है, और देन थोड़ा सा जो लाइट ब्लू आप देख सकते हो ये एवरेज है, और उससे भी लाइट जो है वो एवरेज से थोड़ा कम है। और जो वाइट पार्ट आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेनफॉल का इंडिया में, वो भी एक वजह है वाटर टेबल डिप्लीशन की। Distribution of water. Now you will surprised to know about the uneven distribution of water in the world. Some countries in the world are water rich and some are deserts having very little rainfall. पूरे वर्ल्ड में यही सिनारियो है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है और कई पार्ट्स ऐसे हैं वो अर्थ पे जहाँ पर हमेशा सूखा रहता है, पानी की एक बूंद भी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके अपोजिट हम देखते हैं कि कुछ एरियाज जो है वो हमेशा फ्लडेड रहते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट सेम एवरीवेयर, अभी हमने मैप में देखा था। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स व्हाइल सम हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। एक्सेसिव रेन जो है उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, और एब्सेंस ऑफ रेन जहाँ होता है वहाँ पर ड्रॉट्स आते हैं, यानी कि सूखा होता है। वाटर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स वेल प्लान्ड सिस्टम टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ प्रेशियस वाटर। अब वाटर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है उसको रोकना प्लानिंग के थ्रू। You have read in class 6 that a well-planned pipe system provides a regular supply of water, but when you see that water supply pipe is leaking, a lot of water outpours. What do you think about the management and responsibility of the civic authorities? हमने कई जगह देखा है कि जो रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर होता है पाइपलाइंस के थ्रू, वो बहुत अच्छे से होता है कई जगहों पर, और कई एरियाज या कई टाउन्स या सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर लीकेज ऑफ वाटर बहुत होता है बिकॉज ऑफ दिस लीकिंग पाइप्स। तो अगर कहीं पाइप लीक होता है, अगर इंफॉर्मेशन जो है चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो या कोई नगर निगम हो, नगर पालिका हो, वहाँ अगर उसकी इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं पहुँचती है, जल्दी नहीं पहुँचती है, तो बहुत सारा पानी जो है उन लीकिंग पाइप्स के थ्रू जो है वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल कोई भी हो, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें जल्दी से जल्दी जो वाटर के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन तक पहुँचानी होती है। ये एक बहुत जिसको हम कहते हैं कि हर सिटीज़न का एक ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि हमें ऐसे जो लीकिंग पाइप्स अगर कहीं दिखते हैं तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड दिस इज़ नोन एज वाटर मैनेजमेंट। दिस इज़ द वे ऑफ वाटर मैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज जो है वाटर का, वो अलग अलग लेवल पे हो सकता है और उसके लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर वाइल टेकिंग बाथ, नहाते समय बहुत सारा पानी वेस्ट करना शॉवर के थ्रू। देन वॉशिंग, जो भी हम क्लोथ्स यूज़ करते हैं उनको वॉश करने के लिए या फिर यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए। देन शेविंग, और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। लीकिंग ऑफ टैप जो है, इट इज़ अनदर कॉज ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। आपने भी अपने घर में कभी कभी लीकिंग टैप्स देखे होंगे, जो कि बहुत सारा पानी उसकी वजह से वेस्ट होता है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है वेस्टिंग ऑफ वाटर। सो अवेयरनेस ऑफ नॉट टू वेस्ट वाटर शुड बी क्रिएटेड अमंग द इंडिविजुअल्स, और हमें इसके बारे में अवेयरनेस लाना चाहिए लोगों के अंदर कि आपको वाटर जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम क्या बताएंगे लोगों को कि आप लीकिंग टैप जो है उनको रिपेयर करो, आप जो अपना यूज्ड वाटर है उसको रीयूज़ करो, और जहाँ तक हो सके पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे उसको पानी की वेस्टेज को आप रोक सकते हो। कैसे रोकेंगे? टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, जब हम ब्रश करते हैं तो टैप को बंद रखिए। टेक शॉर्टर बाथ्स, थोड़े पानी में अपने नहाने का काम आप कीजिए। टर्न ऑफ टैप वाइल अप्लाइंग सोप, जब आप सोप लगा रहे हो
तो उस टाइम टैप को बंद रखना है ताकि वेस्ट वाटर नहीं जाए। टर्न ऑफ टैप आफ्टर ईच यूज़, और हर बार जब आप टैप यूज़ करते हो पानी के लिए उसको आपको ऑफ करना है। देन दिस इज ऑल्सो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर, जो कि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसको हम हॉस पाइप से वॉश करते हैं, यही काम हम सिर्फ एक बकेट लेकर के उसमें से भी हम एक कपड़े से उसको साफ कर सकते हैं। देन बाथिंग के लिए जो शॉवर्स यूज़ होते हैं वो भी यूज़ नहीं करने चाहिए। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि टैप चल रहा है, उसके नीचे बकेट है, कोई भी पॉट है, या वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो ओवरफ्लोइंग जो है दैट इज ऑल्सो वेस्टेज ऑफ वाटर। देन लीकिंग टैप्स जो है, और ब्रशिंग शेविंग के टाइम हम जो टैप ओपन रखते हैं दैट इज ऑल्सो वेस्टेज ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर शुड बी एनकरेज फॉर द सेम रीज़न, और इसी के लिए हमें वाटर को कंजर्व भी करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड एंड फॉरगॉटन मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर इज द नोशन ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन अगर पानी का नहीं होगा तो जल्दी ही पानी का जो शॉर्टेज है वो बढ़ जाएगा। वी नो दैट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द प्लानट इज यूजेबल। हमने अभी अभी पढ़ा कि बहुत थोड़ा पानी अपने पास है जो कि यूजेबल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ केयरफुली, और इसीलिए पानी को हमें केयरफुली यूज़ करना है। नाउ यू कैन क्वेश्चन हाउ वी कैन केयर फॉर एंड कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज। तो हम किस तरह से अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं या उनका लुक आफ्टर कर सकते हैं। And the answer is conservation of water. Now what is conservation of water? The wise use and management of water in a manner that provides the maximum benefit to all life a period of time. This is known as conservation of water. पानी का वाइजली यूज़ करना और उसको सही से मैनेज करना, यूज़ ऑफ वाटर जो है उसको मैनेज करना, ताकि हम बहुत लंबे समय तक जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो वी नीड टू थिंक ऑफ वेरियस वेज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू थिंक अबाउट वेज टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर। वाटर सेविंग कैन बी डन बाय ईच इंडिविजुअल। वाटर जो है वो हर पर्सन, हर इंडिविजुअल सेव कर सकता है, और वो हम कैसे सेव कर सकते हैं, लेट्स सी। हाउस कैन सेव वाटर बाय प्रॉम्प्टली फिक्सिंग लीक्स और ड्रॉपिंग टैप्स। हमने अभी भी बात की कि जो ड्रॉपिंग टैप्स होते हैं यानी लीकिंग टैप्स होते हैं उनको हमें रिपेयर करना चाहिए। अ ड्रॉपिंग टैप कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ अप टू 72 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एक लीकिंग टैप जो है वो 72 लीटर्स तक पानी वेस्ट कर सकता है एक दिन में। सेकेंड इज रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे you can perform this process at home. For example, water which is used in cleaning utensils can be used to water plants in the garden. जो हमारे घर में वाटर यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, क्लोथ्स वॉश करने के लिए, या फिर जो फ्लोर साफ करते हैं, तो वो वाटर हम प्लांट्स में दे सकते हैं। In this diagram you can see how we can use water or we can reuse water. Then reuse kitchen water. Kitchen water जो है water from steaming, water from rinsing vegetables. This water can be used for plants. Third, by improving the methods of irrigation. Drip irrigation technique was first developed in Israel. Israel में सबसे पहले drip irrigation use हुआ था. It is a technique of watering plants by making use of narrow tubings which deliver water directly at the base of the plant. हमारे जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं जिसमें हम पूरे जो फार्म होते हैं उसको फ्लड कर देते हैं पानी से, तो इससे क्या होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है और जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी वो पहुँच जाता है। लेकिन अगर हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो ट्यूब्स होती हैं उनमें होल्स होते हैं, और ये होल जो है हर प्लांट के पास होते हैं। तो जब इस पाइप में से पानी जाता है तो उस होल से हर प्लांट के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है वो उस प्लांट को मिलता रहता है, एंड दिस इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन. सो इट इज टेक्निक बाय विच वी कैन सेव वाटर. देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आपने इसके बारे में भी पिछली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. दिस सिस्टम हेल्प्स अस टू यूज रेन वाटर डायरेक्टली. इससे हम रेन वाटर को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है. दिस वाटर हार्वेस्टिंग कैन स्टोर रेन वाटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर. अब ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है वो हम अपने घरों में भी लगा सकते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. तो जो रूफ होता है, रूफ से जो रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है टैंक्स में, जो कि अंडरग्राउंड टैंक्स भी हो सकते हैं या फिर ऊपर भी होते हैं, ग्राउंड के ऊपर भी टैंक्स जो लगाए जाते हैं. और ये कलेक्टेड जो रेन वाटर होता है वो बाद में हम ड्रिंकिंग के लिए, इरीगेशन के लिए और हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. वन ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज़ बावरीज. अब बावरीज जो होती हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. तो एक ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक और पिक्चर आप यहाँ देख सकते हो. यहाँ पर ये सीमेंट के टैंक्स बने हुए हैं
और जितना भी पानी इस रूप से कलेक्ट होता है रेन वाटर, वो इस पाइप के थ्रू यहाँ पर आता है टैंक्स के अंदर, और यही वाटर जो है बाद में यूज़ किया जाता है। दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बावरीज जो है, these are the traditional ways of collecting water. Although with time the Boweries fell into disuse and garbage started piling up in these reservoirs. Today they are, however, being revived to manage water needs. In the most of the states of India, tanks, artificial ponds and reservoirs have been made as a part of the water harvesting system. पहले जब राजा महाराजाओं के टाइम जो कलेक्ट करते थे वाटर, मानसून का जो पानी आता था, तो वो बावरीज में कलेक्ट होता था। बावरी मतलब जिसको कुएं भी कहते हैं, जो कि अलग अलग फॉर्म में होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप्स हैं नीचे जाने के लिए, यहाँ भी एक सेंटर में एक बावरी है और स्टेप्स हैं यहाँ पर। इस तरह की जो बावरी है वो आप राजस्थान में और गुजरात में ज़्यादा देख सकते हो। तो ये ट्रेडिशनल वेज है कलेक्टिंग वाटर के। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो रिजर्वायर्स है इनका यूज़ कम होने लगा, क्योंकि घरों में हमें पानी मिलने लगा थ्रू टैप्स। ओके, और ये जो कुएं हैं, ये जो बावरीज हैं, वो एक गार्बेज कलेक्शन का जो है एक जगह बन गई। लेकिन बाद में हमें जब पता चला कि हमें वाटर को मैनेज करना है, क्योंकि हमारी जो वाटर के यूजेस है वो इंक्रीज हो गए, तो हमने इन बावरीज को साफ करना शुरू किया और इसमें पानी जो है वो कलेक्ट करना शुरू किया। ये अलग अलग तरह की बावरीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन दिस इज द वाटर टैंक। इस तरह के टैंक्स जो है वो इरीगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। यू कैन सी जो सदर्न स्टेट्स हैं उनमें आप इनको देख सकते हो मोस्टली। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स। अब प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वाटर स्कार्सिटी का, यानी कि पानी कम हो तो प्लांट्स का क्या होता है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द सिचुएशन इन विच वाटर इज इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। अब स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती है पानी की, उसके लिए पानी इनसफिशिएंट होता है ना, वो पूरा नहीं होता है, उसको हम कहते हैं स्कार्सिटी। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर विल्टिंग ऑफ प्लांट्स विल टेक प्लेस। विल्टिंग हो जाता है प्लांट्स का, यानी कि वो मुरझा जाते हैं। इन सीवियर कंडीशंस प्लांट्स में डाई। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर आप प्लांट गमले में लगाते हो और उसको आप बिना पानी के छोड़ दोगे तो इट विल नॉट ग्रो, इट विल डाई, बिकॉज प्लांट्स में जो एब्सॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का सॉइल से, उसके लिए पानी जरूरी होता है। Just imagine the consequences if water is not available to plants. Without water, survival of plants is not possible, and in the absence of plants, life cannot exist on the earth. तो अगर पानी नहीं है तो प्लांट्स नहीं होंगे, और अगर प्लांट्स नहीं है तो लाइफ जो है अर्थ के ऊपर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Here you can see this is the fresh plant which is getting water, sufficient water, and here the wilted plant. Wilted मतलब जो मुरझा गया है, because here shortage of water is there. Then purification of water. Purification of water at home. People in villages and towns get water from wells, hand pumps and springs, or from rivers or lakes. Water from these resources may not be fit for drinking and cooking. तो ये जो sources है water के, wells, hand pumps, springs, rivers and lakes, यहाँ से जो पानी हम लेते हैं वो drinking और cooking के लिए अच्छा नहीं होता है, fit नहीं होता है। This water can be made fit for drinking and cooking as described below. तो इसको फिट बनाने के लिए, कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। लेट्स सी। फर्स्ट, बाय फिल्ट्रेशन। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो होती हैं, दीज कैन बी रिमूव बाय फिल्टरिंग वाटर थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लॉथ। एक कॉटन का कपड़ा या फिर मुस्लिन क्लॉथ जिसको कहते हैं, वो क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हो और पानी को फिल्टर कर सकते हैं, जिससे कि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ मतलब जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसमें से निकल जाएंगी। आजकल हम इस तरह के फिल्टर्स यूज़ करते हैं जो कि स्टील के भी होते हैं, आजकल कॉपर के भी आने लगे, और इलेक्ट्रिक फिल्टर्स भी हम यूज़ करते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए। सेकेंड इज बॉइलिंग। द फिल्टर्ड वाटर कैन बी मेड जर्म फ्री बाय बॉइलिंग 10 to 15 मिनट्स एंड कूलिंग इट बिफोर यूज़। तो जो भी हम पानी यूज़ कर रहे हैं उसको 10-15 मिनट्स तक बॉईल करेंगे तो उसमें से जर्म्स जो है वो मर जाते हैं सारे, और इस पानी को ठंडा करने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बाय ट्रीटिंग विथ सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है या फिर क्लोरीन है, वो हम यूज़ करते हैं जर्म फ्री करने के लिए। तो फिल्टर्ड वाटर जो है वो भी पूरा फिट नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी जर्म्स हो सकते हैं। तो ये जर्म फ्री बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ करते हैं। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, दिस आर क्लोरीन टैबलेट्स। क्लोरीन के ड्रॉप्स भी आते हैं कि लिक्विड फॉर्म में भी आता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। By exposing water to ultraviolet radiation, the filtered water can be made germ free by exposing it to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation जो है वो जर्म्स को किल कर देते हैं, तो इस तरह से जो चिन्स होती है उसकी, उसमें यूवी रेज छोड़े जाते हैं
और उसमें वाटर को पास किया जाता है और ये वाटर जो है वो जर्म फ्री हो जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर सिटी सप्लाई, जो सिटी सप्लाई होता है यानी कि जो वाटर हमारे घर पे आता है वो कैसे क्लीन करते हैं, हाउ इट इज़ प्यूरिफाइड। द मेथड यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। पीपल इन बिग सिटीज गेट प्यूरिफाइड वाटर फ्रॉम रिवर और लेक through a network of pipelines, and the various steps involved in the purification of water for city water supply are described below. So one by one we will see कि ये water purify कैसे होता है। First, removal of suspended impurities. The pumped water is mixed with a small quantity of alum. Alum means फिटकरी। तो ये जो alum है इसको हम मिक्स करते हैं पानी के अंदर जो कि पंप होता है रिवर या फिर लेक से, और इसको हम अलाउ करते हैं टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए हम उसको सेटल होने के लिए रखते हैं। The suspended particles of clay settle down at the bottom of the tank and upper layer is sent for filtration. तो इस तरह से जो लेयर बन जाती है नीचे जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो सेटल हो जाती है बॉटम में, और ऊपर जो लेयर होता है पानी का उसको हम फिल्ट्रेशन के लिए भेज देते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आफ्टर सेडिमेंटेशन वाटर इज पास थ्रू थिक लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। सैंड और ग्रेवल से बने हुए जो लेयर्स होते हैं उसमें से इस वाटर को पास किया जाता है, जिसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। देन नेक्स्ट इज एरिएशन। एरिएशन में क्या होता है, एयर अंडर प्रेशर इज देन ब्लोन इनटू द फिल्टर वाटर। इस फिल्टर वाटर में एयर को ज़्यादा प्रेशर से छोड़ा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरिएशन। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर आर किल्ड थ्रू दिस प्रोसेस। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस वाटर में प्रेजेंट होते हैं दे आर किल्ड थ्रू दिस प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन। The filtered and aerated water is chlorinated by adding chlorine to it. हमने भी पढ़ा कि जो क्लोरीन है वो वाटर को क्लीन बनाता है, जर्म फ्री बनाता है। The process of chlorination makes the water germ free. This purified water is then supplied to the users through a network of water pipes. तो इस तरह से सेडिमेंटेशन होने के बाद फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद क्लोरिनेशन होता है, और फिर ये जो वाटर है वो आगे सप्लाईज जो होता है वाटर पाइप के जो कनेक्शंस होते हैं उससे सप्लाई किया जाता है। So here you can see clearly this is the reservoir or river or lake. Then this is the first tank where this water is allowed to settle. All the solid particles they settle at the bottom. This is the sedimentation tank. Then this is the loading tank to sediment the suspended impurities. Then this filtered or filtration tank. यहाँ पर जो sedimentation के बाद जो water बचता है ऊपर उसको यहाँ पर पास किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो फाइन सैंड और कोर्स जो ग्रेवल्स हैं उनके लेयर्स होते हैं जिसमें से ये पानी सिप होकर के क्लोरिनेशन के लिए जाता है आगे वाले टैंक में, और यहाँ क्लोरिनेशन के बाद ये जो है पानी आपके घर पे पहुँचता है। देन वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेज, germs, etc. is called water pollution. The substance causing pollution is called pollutant. Sewage, garbage, animal dung, pesticides and toxic chemicals are वेरियस पोल्यूटेंट्स। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है कि वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिस्पोजिंग सीवेज, गार्बेज, एनिमल डंग, पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक केमिकल्स इन वाटर बॉडीज। इसकी वजह से ये वाटर बॉडी जो है वो पोल्यूट होती है। यू कैन सी द पिक्चर। जब हम नहाते हैं या फिर जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, देन बहुत सारी ऐसे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं डिस्पोजेबल होते हैं, देन जो इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है, ये सारे रीजंस हैं कि ये वाटर बॉडीज़ जो है वो पोल्यूट हो जाती है। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स एंड लेक्स। अनट्रीटेड जो सीवेज होता है जिसको बिना ट्रीटमेंट के ही वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है, उनके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे डिसीजेस का एक रूट कॉज हम कह सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस है, डिसेंट्री है, डायरिया है। देन डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं जो कि डिस्पोज किए जाते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, जैसे कि रिवर्स है, कैनल्स है, लेक्स है, एंड दिस केमिकल्स आर हाईली टॉक्सिक। ये बहुत जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं एंड पॉइजनस फॉर द ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज करेंगे वाटर बॉडीज़ के अंदर तो वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके लिए एक डेंजर जोन वहाँ पर बन जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, वो डिकम्पोज नहीं होते। When the farmers use these chemicals in their fields, these are washed off by rain and carried to the water bodies because these chemicals are highly soluble in water. तो ये जो chemicals हम use करते हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, वो chemicals
रेनफॉल का जो वाटर होता है, बारिश का पानी, उसके साथ बह के वाटर बॉडीज़ में वापस आ जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बट दे आर सोल्यूबल इन वाटर. The excessive use of fertilizers and pesticides may be harmful for aquatic plants and animals. Here you can see fertilizers and chemicals that are used in farming. कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन. हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मस्ट बी प्री ट्रीटेड बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू द लेक और रिवर. सबसे पहले जो भी सीवेज होता है, डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, वो सारा ट्रीटमेंट के बाद ही डिस्चार्ज करना चाहिए लेक्स और रिवर्स में. बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उनमें ऐसे प्लांट्स लगे होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए, लेकिन कुछ जो इंडस्ट्रीज़ है या फिर कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो इलीगल तरीके से काम करती है और वो जो है गवर्नमेंट के नॉर्म्स और रूल्स जो है उनको फॉलो नहीं करती है, और इसकी वजह से जो है वाटर बॉडीज़ पोल्यूट होती हैं. सेकेंड, ह्यूमन एंड एनिमल्स एक्सक्रीटा शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम मिक्सिंग विथ वाटर रिसोर्सेज. ह्यूमन्स और एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको प्रिवेंट करना चाहिए वाटर बॉडीज़ में जाने से. नंबर 3, अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. जहाँ तक हो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा सकते हैं. नंबर 4, वी शुड नॉट वॉश क्लोथ्स, क्लीन यूटेंसिल्स एंड टेक बाथ नियर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जहाँ भी ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है, चाहे वो हैंडपम्प हो, पॉन्ड हो, लेक हो, रिवर हो, वहाँ पर आपको यूटेंसिल्स हैं, क्लोथ्स हैं, नहीं धोने चाहिए या फिर नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो वाटर बॉडी है वो पोल्यूट हो जाता है, क्योंकि हम जो सोप्स यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं. नंबर 5, अ कवरिंग एंड अ वॉल शुड बी मेड अराउंड अ वेल. वेल जो होती है यानी कि कुआं जो होता है, उसके चारों तरफ हमें वॉल बना देनी चाहिए या फिर उसको कवर करके रखना चाहिए. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आसपास का जो एरिया है, जो सराउंडिंग है वॉल का, वहाँ से बहुत सारा कचरा जो है वो वेल के अंदर चला जाता है, हवा के साथ मिट्टी जाती है बहुत सारी. अगर आसपास कहीं छोटे छोटे नालियाँ हैं तो उसका जो वेस्ट वाटर है वो भी उस कुएं में जा सकता है. और इस तरह से हम अगर एक वॉल बना देते हैं वेल के आसपास या फिर उसको कवर कर देते हैं तो वेल का जो पानी है, कुएं का जो पानी है, वो पोल्यूट नहीं होगा. So here we have come to end of our video. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.